So, Carnot cycle came into picture in 1824, and a scientist named as Sadi Carnot. He has given this, you can say, theoretical cycle. He envisioned this cycle, which he said that it would be the most efficient cycle. So he said that any fluid may be used to operate this cycle, Carnot cycle. Now this is a cylinder, this is a piston arrangement, this is heat insulated walls. Now here this is a piston, you can see over here. Now this arrow shows the piston motion, to and fro motion. It may move forward this side, or it may move backwards. So now on the you can say extreme left side, this side, extreme left side means this side. Now this cylinder, it encloses some working substance. It may be, you can say, any fluid. It may be air, it may be nitrogen, it may be CO2. It all depends upon type of application. Now working substance is enclosed in between this insulated cylinder, and on the extreme left side, this is known as head of this cylinder. Now this head is, we during the process we need to you can say alternatively put these covers, shown by red and black cover. This red cover is known as diathermic cover, and this black cover is known as adiabatic cover. Now in the next slide, there are few assumptions. नाउ इसको इस पूरे साइकिल को जो अचीव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस जो है वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं. ठीक है, वी नीड टू फुलफ़िल फ्यू एजम्पशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन एवर ए क्वेश्चन बीन आस्क्ड अबाउट द कार्नोट साइकिल, यू शुड आल्सो मेंशन अबाउट दीज एजम्पशंस. नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस? नाउ जस्ट आई एम रीड आउट दीज एजम्पशंस. नाउ फर्स्ट एजम्पशन जो है ये है कि पिस्टन इज़ मूविंग इन अ सिलेंडर डज नॉट डिवॉल्व एनी फ्रिक्शन. दैट इज़ फर्स्ट एजम्पशन जो कह रही है इसके हिसाब से ये है कि ये पिस्टन, व्हेन एवर देयर इज़ अ मोशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड दिस सिलेंडर, जब ये आगे टू एंड फ्रो मोशन होगी पिस्टन की, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, बिकॉज यू नो दैट पिस्टन विल स्लाइड ओवर दिस सिलेंडर बिटवीन ऑन द सिलेंडर वॉल्स. सो व्हेन देयर इज़ अ दिस टाइप ऑफ मोशन, स्लाइडिंग मोशन, there is always some form of friction between the surfaces. So some of the energy will be wasted here. But as per assumptions, we are assuming that there is no friction between the walls. So this is the first assumption. Second is the walls of the piston and cylinders are considered as a perfectly insulators. सो सेकंड एजम्पशन है कि जो पिस्टन की जो वॉल्स हैं और सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो सारे की सारी वॉल्स, जैसे इस तरफ भी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप लेफ्ट नीचे, ये सारी वॉल्स जो हैं ये दे आर परफेक्टली हीट इंसुलेशंस. इट मीन्स नो हीट शुड बी लीक आउट ऑफ द सिस्टम और लीक इनटू द सिस्टम. सो दिस इज़ द सेकंड एजम्पशन. द वॉल्स ऑफ द पिस्टन एंड सिलेंडर्स कंसिडर्ड टू बी perfect insulators. This is the second assumption. Now third assumption is the cylinder head is so arranged that it can be perfectly heat conductor or heat insulator. Now this is, you can say, very unrealistic type of assumption. As per this assumption, the requirement is कि जो सिलेंडर का हेड है वो इस तरह से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए कि ड्यूरिंग वन यू कैन से इंस्टेंट इट वर्क एज अ परफेक्ट हीट कंडक्टर, but on another instant it should work as a perfect heat insulator. Fine. So look, again we come back to this picture. Now just to fulfill the third assumption, we need to take two types of covers which we will alternatively use during the process. Now one cover is written over here is diathermic cover, another cover is adiabatic cover. So these covers are shown here only to fulfill this assumption. ये इसके लिए ही हमने यहाँ पे शो किया इनको. Now fourth assumption जो है वो है कि the transfer of heat does not affect temperature of heat source. Take out some amount of heat, that source temperature should not be changed, it should remain constant. Similarly, when we dump some heat into the sink, it should not change.
that is T2 remains same, T1 remains same, irrespective of the amount of heat energy coming out or coming into the system. So these source and sink must act like a perfectly source and sink. Okay, so fifth assumption जो है, the working medium is a perfect gas and has a constant specific heat. Now इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे working substance यूज़ करेंगे हम, जैसे let us say if we will use air over here, the air would remain, you can say it will remain as a perfect gas. I don't know कि perfect gas की कौन कौन सी जो है उसकी qualities हैं, वो आप check करना. तो ये नहीं है कि टेम्परेचर या प्रेशर के जैसे डिफरेंस या जो भी इसमें वेरिएशन होगी तो उसकी परफेक्ट गैस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्टर नहीं होनी चाहिए. इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द साइकिल. एंड सेकंड, इट शुड हैव अ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट आपको पता है क्या होती है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. सो इट मीन्स दैट वट एवर बी द कंडीशंस ऑफ द गैस, कुछ भी कंडीशंस हो, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर हो, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पेसिफिक हीट इज़ क्वाइट यू कैन से डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. सो दिस इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट यू कैन से assumption to fulfill. Almost all these assumptions are very difficult to achieve. So last assumption जो है वो है compression and expansion are reversible. Now this is he is talking about the all the processes. It means the compression process should be reversible and the expansion process should be reversible. Now we have already know that reversible process is not very easy to achieve. हमने जो पढ़ा था ना वो quasi static process, and the first condition of reversible process is it should undergo very slow. कोई भी reversible process होगा वो बहुत ही slow होना चाहिए, तभी वो जो है वी कैन अचीव, वी कैन से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज इट शुड आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट इट शुड कम इन टू अ स्टेडी स्टेट कंडीशन. सो अगेन दिस इज अगेन वेरी यू कैन से डिफिकल्ट assumption to achieve, that is compression and expansion are reversible. Indeed, in reversible process itself is very difficult to achieve. So up to now we have discussed what is the Carnot cycle, what are the various elements of Carnot cycle, what are the requirements for Carnot cycle, and various assumptions that we need to take before we move forward with the derivation of the Carnot cycle. So now you may ask any question up to this point. If you want to ask anything, please ask right now, then we will move forward. No sir. सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes sir. Okay, very good. Okay, now let us move forward. Now with all these assumptions, now we come to the first step. Now this Carnot cycle is basically, it is made up of you can say 4 processes. Out of 4 processes, 2 processes are similar process. Just you can say 2 process, yeah, out of 4 process, 2 are the isothermal processes and other 2 processes are adiabatic processes. सो अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाऊँ इसका, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ये साइकिल है एक तरह से. ये 1 से लेके 2 स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 1. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 to 2. यहाँ एरो नहीं दिखा रखे इन्होंने, यहाँ पे एरो होने चाहिए. यू ऑलवेज वेन एवर यू ड्रॉ द Carnot साइकिल यू मस्ट ड्रॉ लाइक दिस एंड यू मस्ट शो एरो, बिकॉज Carnot साइकिल 2 तरह से होते हैं. एक होता है Carnot साइकिल सिंपल, एक होता है रिवर्स Carnot साइकिल. जो हम ये वाला जो जिसकी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ अ यू कैन से इट वर्क इन अ क्लॉकवाइज मैनर. सो इसका एरो इस तरह से होगा, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1. अब यहाँ पे जो 4 प्रोसेस हैं उसमें 1 से लेके 2 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1 to 2, यानी ये फर्स्ट जो कर्व है 1 to 2, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. Afterwards, the second process starts with adiabatic process. Here it is written over here, adiabatic process 2 to 3. From 3 to 4 again there is a isothermal process 3 to 4, and 4 to 1 there is again adiabatic process. So it works like in a cyclic form. Now as per our assumptions, it is required that all these walls should be perfectly heat insulated, but the head should not be you can say it work like a you can say perfectly heat conductor at one time, another time it work like a heat insulator. Now in the first step
द हेड शुड वर्क लाइक अ हीट, यू कैन से परफेक्टली हीट कंडक्टर, यानी यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जो है हीट यहाँ से अंदर आएगी, तो उसके लिए हीट अंदर आने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट ऑल दी वॉल्स आर इंसुलेटेड. So the only you can say the path is from here, the head of the this cylinder. तो हेड को हम यहाँ दो प्लेट्स या दो तरह से हेड को हम कवर करेंगे. दो कवर्स हमारे पास, एक है डायबिटिक कवर, एक है एडियाबेटिक कवर. डायबिटिक कवर इज अज्यूम टू बी अ हीट सोर्स, जिसमें कि हम जिसके थ्रू हम हीट को अंदर जो है इंजेक्ट कर सकते हैं. सो जैसे ही हम डायबिटिक कवर यहाँ पे लगाएंगे, इट मीन्स इट बिकम्स अ परफेक्टली हीट कंडक्टर. Then we can easily pull the heat from source T1. So let us say we put the first this diabatic cover, which is heat good heat conductor. So and we pull the heat Q1 from the heat source. पहला कवर लगाया, हीट सोर्स से हमने हीट जो है अंदर इंजेक्ट कर दी. नाउ फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस. Now it's your turn. Now tell me, what is the isothermal process? You have studied a lot of many times. हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. Temperature. हाँ बोलो So बोलो. temperature remains constant. Yeah, very good. Now assume that we have put this diathermic cover. We let the heat come inside the system. Now Q1 amount of heat comes inside. And Q1 amount जो हीट अंदर आने के बाद जो है उसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है. तो कैसे करेंगे? Now heat source at temperature T1 is applied. Q1 heat is taken inside. यानी Q1 हीट जो है अंदर जो एयर है उसको हमने हीट सप्लाई किया है, उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर हमने Q1 हीट को इंजेक्ट किया. बट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. नाउ हाउ इट विल हैपन? अगर कोई सिस्टम के अंदर हीट आती है तो टेम्परेचर क्या होगा? Increase होगा. बट हेयर द कंडीशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. सो हेयर वी मस्ट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. सो उसके लिए हमें क्या करना है? एज सुन एज द हीट कम्स इन साइड्स, because this piston is free to move and we have already assumed that there is no friction between the cylinder walls and the piston. अब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे ही हीट अंदर आएगी तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर. सो एयर विल ट्राई टू एक्सपेंड and we will give it you can say free path to expand. So what will happen, that all the heat energy we will let it to convert into the work, because when the piston moves outwards, जब piston ये move होगा तो एक तरह से वो work कर रहा है system के ऊपर, तो it means all the heat energy is converted into work. सो Q1 इज़ एक्सपेंडेड. जितना भी हमने हीट एनर्जी इसमें हमने इंजेक्ट किया था वो सारा का सारा जो है कंज्यूम हो गया किसमें? पिस्टन को पीछे मूव करने में. सो व्हाट विल हैपन, दैट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन, बट द सिस्टम्स एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. क्योंकि जब ये पिस्टन मूव होगा तो एक्सपेंशन होगी, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन जितनी भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई थी वो जो है नलीफाई हो जाएगी, या वो क्या होगी? कंपनसेट हो जाएगी. So in this way we can you can say to large extent manage to maintain the temperature constant at stage 1. Now the second process is adiabatic expansion. Now you know the adiabatic जो process है it is itself the process in which no heat energy is allowed to come inside or go outside the system. सबको याद है ना adiabatic process? Yes, sir. So yeah, very good. So adiabatic process जो है in second stage this is adiabatic process. So in this case we need to put the second cover. जो black वाला cover है हमने यहाँ पे लगाना है. ये जैसे ही step 2 पे हम पहुँचेंगे इससे पहले हमें cover change कर देना है. यानी ये state शुरू होने से पहले, यानी just at the time of start of the state we put this cover, adiabatic cover. अब इसका नाम भी adiabatic cover है. It means it is perfectly insulated cover. It does not allow any heat to come inside the system or go out of the system. And now you can say this system is surrounded with the heat insulation. No heat can come inside and no heat can go outside. So अब क्या होगा यहाँ पे? Now we let in this इस केस में क्या था कि हीट एनर्जी अंदर आई थी. Now अब जब फर्दर यहाँ से पहले एक्सपेंशन हुई तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, लेकिन उसके बाद थोड़ी एक्सपेंशन और हुई. एट दिस स्टेट देयर इज सम मोर एक्सपेंशन विल टेक प्लेस.
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लूइड एक्सपेंड्स, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है T1 से T2 हो गया, यानी कम हो गया, क्योंकि कोई हीट अंदर नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी जो एक्सपेंशन हुई है। सो ड्यू टू द एक्सपेंशन टेम्परेचर इज़ फर्दर लोअर्ड फ्रॉम T1 टू T2. Okay, now let us move to the third state. Now again third stage, it consists of isothermal compression. अब फर्स्ट जो थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी अंदर आई थी। हीट एनर्जी अंदर आने से हमें पिस्टन को पीछे मूव करना था, उससे क्या है कि उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना था। तो यहाँ पे इसको मतलब फर्स्ट जो हमारा जो स्टेप था वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद एक्सपेंशन विल कंटिन्यू इन द सेकेंड स्टेज, बट द कवर इज़ चेंज्ड विद एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे सेकंड भी, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रही थी। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, नाउ देर इज़ अ आइसोथर्मल कंप्रेशन. नाउ जस्ट यू कैन एज्यूम दैट देर इज़ अ यू कैन से फ्लाई व्हील विच इज़ कनेक्टेड, दिस पिस्टन रॉड इज़ कनेक्टेड विद द फ्लाई व्हील. नाउ सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो हीट एनर्जी आई तो इस पिस्टन ने काम किया फ्लाई व्हील के ऊपर। अब यहाँ पे फ्लाई व्हील के अंदर जब एनर्जी स्टोर हुई तो उसने क्या किया, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी उसने पिस्टन को पीछे खींचा, यानी यहाँ पे एक्सपेंशन हुई फ्लाई व्हील की तरह ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील. थर्ड स्टेप में भी जो फ्लाई व्हील है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील इट वर्क ऑन द सिस्टम, और उसने पीछे पिस्टन को आगे जो है मूव किया. तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, अब नो एज द पिस्टन मूव्स फॉरवर्ड एंड वी विल पुट, अब क्योंकि दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे हमें अगेन वी नीड टू पुट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पिस्टन जो है रिवर्स काम कर रहा है, यानी पिस्टन विल मूविंग दिस पुशिंग द गैस इनवर्ड्स, कंप्रेस कर रहा है इसको. लेकिन जैसे ही गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? जब पिस्टन जो है गैस को कंप्रेस करेगा इस छोटी सी जगह पे, तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. बट वी नीड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, लेकिन हमें उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. तो यहाँ पे क्या होगा, वी नीड टू अगेन चेंज द कवर टू डायाथर्मिक कवर. अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उतनी की उतनी हीट जो है वापस हम वी विल रिजेक्ट दैट हीट इनटू द सिंक. means during the compression process the temperature will increase, but we will pull out the heat, q2 amount of heat will we will remove from the system so that we can keep the temperature constant. तो यहाँ पे again the temperature remains T2, जो इससे पहले था वो टेम्परेचर हमने वही रखना है जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर था. वी कीप द टेम्परेचर T2 by removing the cover by changing the cover to diathermic cover, and we remove the Q2 amount of heat from this during this process. यहाँ तक समझ आ गया सबको? हेलो डियर स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. कुछ गड़बड़ हो रही है. नाउ लास्ट स्टेप इज़ अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन. अब देखो पहले दो प्रोसेस थे एक्सपेंशन के, अब सेम वही प्रोसेस है लेकिन दोनों कंप्रेशन में. अब ये कंप्रेशन है. अब यहाँ पिस्टन आगे मूव किया, यहाँ पे कंप्रेस हुई गैस. अब फिर पिस्टन इज़ कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप ऑन कंप्रेसिंग द गैस. बट नाउ एज सुन एज दिस एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टार्ट्स, जैसे ही ये स्टार्ट होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है 4-1, हम क्या करते हैं, दोबारा फिर कवर चेंज कर देते हैं, क्योंकि एज़ पर रिक्वायरमेंट एडियाबैटिक जो कंप्रेशन है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हीट जो है बाहर नहीं आनी चाहिए. सो हीट बाहर नहीं आनी चाहिए मीन्स वी नीड टू चेंज द कवर. हमने अब यहाँ पे एडियाबैटिक कवर लगा दिया, तो लेकिन कवर जैसे ही हमने चेंज किया तो क्या होगा, जैसे बिकॉज गैस तो कंप्रेस हो ही रही है, द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो नाउ एट दिस स्टेप एट दिस स्टेज द टेम्परेचर विल चेंज, उसका टेम्परेचर अब इंक्रीज़ होगा क्योंकि हीट बाहर नहीं जा सकती. सो नाउ द T2 यहाँ पे जो टेम्परेचर कांस्टेंट था वो चेंज नहीं, अब कांस्टेंट नहीं रहा. नाउ इट विल चेंज टू T2 टू T1, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, दोबारा T1 हो गया. सो दिस इज़ हाउ कार्नोट साइकिल वर्क्स. अब यहाँ से तुम्हें इसकी वर्किंग देख के लग रहा होगा कि ये आइडियल मतलब एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज़ नॉट ईजी, या यू कैन से इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव सच टाइप ऑफ सिस्टम. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल दी साइकिल्स, जितने भी आजकल साइकिल हैं, जितने भी IC इंजन हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल, ये सभी की सभी जो साइकिल्स हैं दे ट्राई टू यू कैन से अचीव दिस कार्नोट साइकिल टू सम एक्सटेंट.
इन सभी के अंदर ये कोई ना कोई एक या दो प्रोसेस सभी के अंदर होते हैं। और अल्टीमेटली हमारा मेन सोल पर्पज़ ये होता है कि वी कैन कम क्लोजर टू कार्नोट साइकिल, बिकॉज दिस इज़ एन आइडियल एंड मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, एंड एट सम पॉइंट ऑफ स्टेट वी नीड टू अचीव दिस साइकिल। सो इसलिए सिंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, एवरीबॉडी शुड नो अबाउट दिस साइकिल कि कार्नोट साइकिल क्या चीज़ है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसका यही कारण है क्योंकि ये एक बड़ा जो इट इज़ वेरी एफिशिएंट साइकिल, बट इसके एजम्पशंस जो हैं दे आर वेरी, यू कैन से, नॉन प्रैक्टिकल, वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। ऑल दीज एजम्पशंस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो इसी वजह से ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 100% जो है आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ये याद रखना आप। सो यहाँ तक आपको किसी को कुछ पूछना तो बताता हूँ मुझे। एनीवन? No, sir. No, sir. Now we need to derive the COP for the Carnot cycle, yeah, efficiency of the cycle, sorry, efficiency. Now for that, first you need to understand how these curves are drawn on pressure volume diagram and temperature entropy diagram. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अब दोबारा इसको नाउ यू विल अंडरस्टैंड मोर, यू कैन से इजली। अब ये हमारा पहला फर्स्ट साइकिल है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ फर्स्ट में हमने हीट यहाँ पे इंजेक्ट की पहले Q1, तो 1 to 2 इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसमें हीट Q1 अंदर आई है। 2 to 3 इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसमें कि हीट अंदर नहीं आई लेकिन टेम्परेचर जो है क्या हुआ, एडियाबैटिक के अंदर हीट तो अंदर नहीं आ सकती लेकिन उसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। यहाँ टेम्परेचर जो है कांस्टेंट था, यहाँ टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है एडियाबैटिक के अंदर। 3 to 4 फिर दोबारा आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन ये एक्सपेंशन है यहाँ पे, सॉरी मैंने तुम्हें उल्टा बोल दिया, दोबारा देखो यहाँ पे तो कहीं भूल मत जाना। फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। सो उसके बाद 3 to 4 इज दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम देखो, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है फ्रॉम 3 to 4, इट मीन्स दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो यहाँ पे अगेन वी आर रिजेक्टिंग हीट। अब यहाँ पे पहले हमने हीट को अंदर जो है ऐड किया था, बट यहाँ पे 3 to 4 वी आर, you can say, rejecting heat, or we are pulling out the heat during this process. Now again from 4 to 1 this is adiabatic compression. सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें हम जो है हीट को ना तो अंदर लेके जा सकते हैं ना बाहर, लेकिन टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है। सो इन दिस प्रोसेस 4 to 1 टेम्परेचर इंक्रीज टू T1 अगेन। सो यहाँ पे देखो अब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में फ्रॉम 1 to 2 टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, एज यू कैन सी हेयर T1 इज इक्वल टू T2, because temperature constant क्यों है, this is isothermal process. So T1 is equal to T2 during the process 1 to 2. Now second process is adiabatic process. Now adiabatic process में temperature constant नहीं है, तो it means उसकी entropy change जो है, entropy same है, लेकिन ये देखो 2 to 3 टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3 है। So during this process, adiabatic process 2 to 3 temperature reduced from T2 to T3, बट यहाँ पे जो इंट्रोपी दिखाई है S2 इज इक्वल टू S3, मीन्स टेम्परेचर इज चेंजिंग बट इंट्रोपी रिमेन सेम हेयर। अगेन फ्रॉम 3 to 4 दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो अगेन वी रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट। सो 3 to 4 हीट हमने यहाँ से रिजेक्ट की है, तो यहाँ से तुम्हारा जो टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो 3 to 4 T3 is equal to T4 here, ये सेम है because this is isothermal process. Again 4 to 1 adiabatic compression. So 4 to 1 you can say temperature is again increase from T4 से लेके T1 पे increase हो गए। So this temperature range is now changed to T1 T2 again, because this is adiabatic process, but entropy will be same here, S1 is equal to S2. So this is how you can draw this diagram. Now let us draw the diagram on the, you can say, notebook.